Okay, Bismillah Rahman Rahim. Basically, last time we were discussing, Walaikum Assalam. Last time we were discussing about the inverse square law. Already I mentioned here, this is not applicable only the light intensity. We can also put forward this law towards the radioactivity and also its half-life. And the second thing is the law of gravity also. Follow this one, and the fold of repulsion and also the attraction force also. It's applicable for this type of the law, like inverse square. I mean, the main thing is, as long as the distance is increasing, the intensity of light is decreasing at the square of the distance, inversely proportional. And the force of gravity also have the same manners, and also force of attraction and the electric charge or force of repulsion between the electric charges, the same manners and also template it's having as long as it's a distance increasing. And the radioactivity and the half-life activity. If you are very close to the radioactive nuclei, it will damage the human tissues more as compared to if you are away. And also there is some certain range. खुदा ना खास्ता जब ये आवाज आ रही है Again, I am also connecting, but wait a minute. Yes. बेटा आपने जो खास तौर पे घर पे बैठे हैं ना, तो काइंडली आपने माइक वगैरह ऑफ कर दें. बच्चों को परेशानी हो रही है, तो उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही. अपने जो घर पे खास तौर पे जो जिन्होंने स्पीकर साथ रखे हुए हैं, वो अपने जो है कानों तक महदूद रखें ताकि बच्चों को दूसरों का आवाज़ ना जाए. काइंडली just I mentioned here, this law basically applicable for the radioactive element also. तो उस दिन हम background knowledge study कर रहे थे. तो let's suppose the two isotopic form of the carbon. Not only carbon, you can also take a uranium also. You can also thorium also. There are a lot of the elements in the periodic table if you look over there. तो इसमें हम जो है we are considering that this is C612 and also C614. These are two isotopic form. I want to mention here the number of electron or proton are the same, 6 and 6. But number of neutrons here 6 and number of neutrons here 40. So
which is a more unstable. This is the C14. It's a more unstable. It's considering the more activity element as compared to the C612. ये isotopic form जो है ज़्यादा हमारी radioactive हो. तो हम we are discussing about this is the lambda decay constant. ये हर एक जो है radioactive element का decay constant आपको या तो given होना चाहिए या periodic table में आपको पता होना चाहिए कि इसका decay constant की lambda की value constant जो है इसकी कितनी है. And the next time we cannot justify that how much these material have a it's a half life and how many half lives it will be decayed. तो गोया probability होती है किसी भी अनडिकेड न्यूक्लियाई की किसी भी पेरेंटल न्यूक्लियाई की प्रोबेबिलिटी है कि जितना हमारे पास जो है हैवी होगा उसकी एक्टिविटी उसी हिसाब से ज्यादा होगी. तो जिस तरह से वो कहता है हाई प्रोडक्टिविटी प्रोबेबिलिटी जो है 10, वी डोंट नो अबाउट इट, वो जस्ट वी कैन फोरटेल, वी कैन जस्ट प्रोबेबिलिटी वो जो है ना हम बता सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. वो भी रेडिएटिव डेटिंग से लोग अंदाजा लगाते हैं कि अगर इस तरह का एलिमेंट है तो इसका फर्स्ट हाफ लाइफ ये एक्सपेक्ट की जा सकती है, सेकंड ये है, थर्ड ये है. तो आप 100% आप क्या सिग्निफिकेंट डाटा दे दें कि ये इतने दिन जो है ना इसकी रेडिएशन चलेंगी और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा. यू कैन नॉट बेसिकली द सिग्निफिकेंट डाटा यू कैन फ्लोट. तो हाँ ये है कि आप प्रेडिक्शन या अपनी प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हैं कि हमारे पास ये एलिमेंट है, इसकी जो है हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसकी इतनी हाफ लाइफ में ये खत्म हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द हाफ लाइफ. लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट द हाफ लाइफ, वो टाइम जिसमें आपका ये ओरिजिनल एलिमेंट या पेरेंटल न्यूक्लियाई है वो हाफ रह जाए, उस टाइम को आप कहते हैं हाफ लाइफ. तो जो पहला हाफ लाइफ है उसको हम फर्स्ट हाफ लाइफ कहेंगे. तो एक हम आगे मिसाल भी देंगे चल के. अगर इनकी यूनिट्स की जहाँ तक बात की जाए, बेकरल भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं एक्टिविटी पर सेकेंड, कंसंट्रेशन पर सेकेंड, ये सारी है इसकी यूनिट्स के अंदर जो है इस्तेमाल की जाती हैं. ये बेसिकली बेसिक नॉलेज है. तो जो हॉस्पिटल्स के अंदर दी जा रही होती हैं डोज की फॉर्म में, दैट इज अनदर फॉर्म. वो केमिस्ट्री या रेडिएशन जो है एक्सपोज करने की फॉर्म में देते हैं, उसकी जो है यूनिट्स जो है डिफरेंट भी हो सकती हैं. लेकिन जो सिंपल होंगी वो आपकी जो है बेकरल होगी. तो मिली क्यूरी भी हो सकती है, माइक्रो क्यूरी भी हो सकती है, एक्टिविटी पर सेकंड भी हो सकती है. ये सारी जो है कॉमन जो है आप यूज कर सकते हैं. तो नाउ लेट्स डिफाइन द व्हाट इज हाफ लाइफ. अगेन मैं शेयरिंग कर लूं ताकि आपको सही तरह से ये शेयरिंग हो रही. ओके. हाफ लाइफ का वो कहता है कि टाइम इन विच हाफ ऑफ द न्यूक्लियस डिकेड, यानी ऐसा टाइम जिस तरह हमारे पास जो है एक किसी भी एलिमेंट की जो एक्टिविटी है वो लेट्स सपोज जो है कितनी थी, लेट्स सपोज उसकी 2000 जो है बेकरल थी. अब उसको 1000 तक जाने के लिए एक हफ्ता लग गया, तो वो एक हफ्ता जो होगा उसकी हाफ लाइफ कहलाएगा. यानी वो टाइम जिसमें वो आधा रह गया, आधा डिके कर गया, आधा जो है अनडिकेड रह गया. तो 1000 यानी कि बेकरल रह गई और 1000 बेकरल जो है उसकी जो है चली गई. That time in which half of the element or the nucleus decayed. अच्छा, दूसरी बात ये है बेटा, लमसम जो आज मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा तो आपकी अटेंडेंस जो है ना HOD एंड डीन जो है साहबान मांग रहे थे ऑनलाइन डाटा में कितने बच्चे जो है ना अटेंड कर रहे हैं और कौन कौन से को मसला है. तो ये अल्टीमेटली आपका डाटा आज ये इन द फॉर्म ऑफ जो प्रेजेंट है या एब्सेंट है ये जाएगा. ये भी केयरफुल. तो इसमें जो है फिर मे भी वो आगे पॉलिसी है उनकी कि उसके मार्क्स रखें या आपके अटेंडेंस के बारे में क्या आगे पॉलिसी बनती है. और इस वीक जो है आपके एग्ज़ाम के बारे में भी कोई डिस्कशन होनी है काफ़ी, यानी कि इस दफ़ा डिसीजंस होंगे, फाइनल डिसीजंस जो कि एग्ज़ाम के बारे में और बच्चे किस तरह पीआर हों, इन सारी चीज़ों के बारे में ये डिस्कशंस होंगे. ओके जी. इसमें हम जो है हाफ लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं. टाइम इन विच हाफ ऑफ द न्यूक्लियस जो है डिकेड, इट्स कॉल्ड द हाफ लाइफ. अब साफ ज़रे अगर आपकी जो है अगर एक एलिमेंट आपके पास, मैंने आपको कहा 4000 बेकरल है, उसमें आफ्टर जो है 2 डेज जो है उसका 2000 रह जाता है. दैट 2 डेज इज कॉल्ड द हाफ लाइफ ऑफ दैट मटेरियल, जिसमें आधा रह गया. दूसरे लफ्ज़ में वो कहता है, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टाइम टेकन फॉर द एक्टिविटी ऑफ एन आइसोटोप टू हाफ. यानी वो टाइम
जिसमें वो हाफ रहने के लिए टाइम लेगा, उसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड द हाफ लाइफ। इसलिए वो एक एग्जांपल दे रहा है, ये आपके पास जो है फुल मैथ्स गिवन है, ये आपको आफ्टर सम टाइम जो है या सम डेज या सम ईयर के बाद जो है ना वो कहता है हाफ रह जाता है, ये ऊपर वाला हिस्सा आधा इसका डिके कर जाता है, तो इसको हम कहेंगे वो टाइम जिसके अंदर ये हाफ रह गया, दिस इज कॉल्ड द हाफ लाइफ। इसका फार्मूला भी आगे हम जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं। हाँ, अगर वो कहता है इनका डिके देखा जाए तो डिके के अंदर कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती। जो मोस्टली एलिमेंट का या रेडिएक्टिव एलिमेंट का डिके देखा गया वो एक्सपोनेंशियली डिके है, यानी कि अगर आप जो है 0 सेकंड में अगर उसकी 8 जो है विकरल या 8 एक्टिविटीज थी, 1 सेकंड के बाद जो है वो 4 रह गया है, 2 सेकंड के बाद वो तकरीबन जो है 1 रह गया है, अप टू 5 के बाद भी 1 रह गया है, फिर वो प्रोलॉन्ग हो रहा है। यानी अगर हम उसको देखें तो इसको हम इस तरह के डिके को कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन आती तो हम कहते हैं उसके कंटिन्यूअस जो है डिके प्रोसेस। तो एक्सपोनेंशियली जो है डिके कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। हर एक मटेरियल, हर एक एलिमेंट का अपना डिके कांस्टेंट जो है कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब वो कहता है कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, किसी भी मटेरियल की रेडिएक्टिविटी अगर 2000 जो है विकरल है, वो कितने हाफ लाइफ्स के बाद 250 रह गया। अब मैं 250 उस दिन मैंने आपको बताया था 125 हम कह देते हैं। अब वो कहता है कि टोटल उसकी जो है दिन कितने लगे, उसको 8 दिन लगे। यानी अगर 250 की जगह हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 125 तक उसको 8 दिन लगे हैं, तो इसका मतलब है कि कितनी हाफ लाइफ्स के अंदर वो 25 तक पहुंचेगा। ये 250 से हम अब 125 तक चले गए, कितने दिन हुए हाफ लाइफ के और कितने जो है हाफ लाइफ के बाद वो 125 विकरल तक पहुंचेगा, इसको हम अभी देख लेते हैं। हाउ मेनी हाफ लाइफ्स इट विल टेक। अब वो कहता है 2000 से पहले फर्स्ट हाफ लाइफ होगी, यानी कि इसमें फर्स्ट हाफ लाइफ में जितने भी डे है उसमें आपका कंसर्न नहीं है, वो आपका 1000 विकरल हो जाएगा फर्स्ट हाफ लाइफ में। उसके बाद फिर 1000 फिर जो है ना हमारा जो है डिके प्रोसेस स्टार्ट होगा, ये 1000 से 500 में चला जाएगा। अब ये 500 में 250 तक, हमने कहा कि 4 हाफ लाइफ्स, ये अब 250 से जब 125 होगा ये इसकी 4 हाफ लाइफ बन जाएगी, तो 8 डेज उस पर लगेंगे। अगर 8 डेज लगेंगे तो एक हाफ लाइफ जो है वो 2 डेज पर मुश्तमिल है, यानी कि 2000 से जो 1000 लाने में उसको टाइम लगा है वो 2 डेज लगे हैं। अगेन ये 2 दिन लगेंगे 4 दिन, अगेन ये 2 डेज लगेंगे ये 6 दिन, 125 तक जाने के लिए उसको 8 दिन लगे, यानी 1 हाफ लाइफ जो है कितने दिन पर मुश्तमिल है, 2 डेज पर। तो कितने हाफ लाइफ में 125 हो जाएगा, 4 हाफ लाइफ के अंदर। तो कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी क्या है, कोई मटेरियल जो हमारे पास जो है पड़ा हुआ है उसका टाइम अगर जो है 0 है, अभी इस डिके स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो मटेरियल जो होगा उसको हम n नॉट कह सकते हैं, यानी उसकी जो कंसंट्रेशन थी या उसकी जो न्यूक्लियाई थी वो n नॉट के बराबर थी। हाँ, जब टाइम गुजर गया, कुछ डिके हो गया, जो रिमेनिंग बाकी मांदा रह गया उसको हम n कहते हैं, यानी अनडिकेड न्यूक्लियाई। अब इसमें अगर हम बैक स्लाइड पे जाएं, इसमें दिस इज द n नॉट, आफ्टर सम टाइम जो है ये जो बच गया दिस इज हमारे पास जो है n। अब इसका टाइम कितना होगा, t 1/2, क्योंकि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद। अगर कांस्टेंट आप ले लेते हैं टाइम टी सी इज इक्वल टू, तो ये जो बच जाएगा वो उसको हम कहेंगे n, इसकी क्वांटिटी जाएगी न्यूक्लियाई की वो n है, यानी n नॉट से n हो गई। या इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास जो है पहले a नॉट था अब a हो गया टाइम t के बाद। इसका अगर m नॉट था मास अब m हो गया। इस तरह से इसको सिंबल को रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। अब ये देखें दूसरी चीज ये है क्योंकि टाइम के साथ साथ हमारे पास जो है उसके डिके के साथ कमी आ रही है, एक चीज जो है टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, उससे हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। अब इसमें टाइम के साथ साथ उस एलिमेंट में डिके आ रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो कहता है कि A इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n। A एक्टिविटी है, लैम्डा डिके कांस्टेंट है, n आपके पास अनडिकेड न्यूक्लियाई है जो बाकी रह गई। तो अगर A इज प्रोपोर्शनल टू n हो, तो जब हम A इज इक्वल टू करते हैं, ये माइनस लैम्डा, माइनस क्यों आया, क्योंकि टाइम के साथ साथ उसके अंदर लॉस हो रहा है। माइनस लैम्डा n एक्टिविटी, अनडिकेड न्यूक्लियाई, लैम्डा कांस्टेंट। इसका मतलब लैम्डा हर एक एलिमेंट के लिए कांस्टेंट डिफरेंट हो। सिमिलरली हमने क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है n के अंदर जो चेंज आ रही है टाइम के हिसाब से, इसको हमने कह दिया dn/dt। इसको हम कैसे किया, a को हमने लिख लिया, यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ n पर टाइम है।
डी एन ओवर डी टी, इसको हम लिख सकते हैं। इसी को हमने ए को डी एन ओवर डी टी, डी एन ओवर डी टी। अब आप जो है माशाल्लाह मैथ जानते हैं, इसको आप इंटीग्रेट कर लें, इसको इनको इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं। इंटीग्रेशन के बाद आपको इक्वेशन आ गई, लैम्डा एन इज लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस कांस्टेंट। अब वो कहते हैं इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाएं। जब आपके पास टी था 0, उस वक्त आपका एलिमेंट जो है क्या था, ओरिजिनल एलिमेंट था जो कि पैरेंटल था, एन इज इक्वल टू एन नॉट था। अब इसमें टी 0 पुट कर लें, एन इज इक्वल टू एन नॉट, सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा लॉग ऑफ एन। अब इसी वैल्यू को इक्वेशन ए के अंदर अगर हम फिल करेंगे तो हमारे पास एक जो है इक्वेशन आ जाएगी, log ऑफ n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस log ऑफ n नॉट। इस c की जगह आपने ये n नॉट लिखा, यही log ऑफ n नॉट, ये इज इक्वल टू है, माइनस नहीं है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो अगेन इसको थोड़ा सा हम जो है सिंप्लीफाई करते हैं, ये log ऑफ n है, इस log ऑफ n नॉट को सेम साइड पे ले जाते हैं, ये माइनस लैम्डा t आ गया। तो ये आपके पास कैलकुलेशन के बाद जो इक्वेशन बनी, n ओवर n नॉट इज इक्वल टू e की माइनस लैम्डा t। वो कहते हैं कि लैम्डा इज अ फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल लेफ्ट, यानी जितनी फ्रैक्शन रह गई है, एक्सपोनेंशियल डिके जो उसका हुआ है, इस इक्वेशन को ट्रेंड ने जो है फॉलो किया है, जो एक्सपोनेंशियल डिके हुआ है। तो ये आपके पास रिमेनिंग है, n नॉट आपकी ओरिजिनल वैल्यू। अब एक आपके पास इक्वेशन आ गई, n ओवर n नॉट भी लिख सकते हैं, m ओवर m नॉट भी लिख सकते हैं, तो a ओवर a नॉट भी लिख सकते हैं। ये सारे सेम मैनर्स में आप ये चीजें एक हिसाब से इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ये ओरिजिनल हमारे पास ए नॉट थी, अब ए रह गई है, एम नॉट थी, एम रह गई है, एन नॉट थी, एन रह गई। दीज आर ऑल अबाउट द इक्वेशन। अब ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन जो है आपके पास बन गई। ओके, अब ये देखें, अब मैं कहता हूं कि सबसे पहला हमारे पास जो मटेरियल था वो एन और एन नॉट इज इक्वल टू ई की माइनस लैम्डा टी है। अगर इसको हाफ लाइफ की फॉर्म में मैनर में लिखना चाहें तो व्हाट इज हाफ लाइफ। अब वो कहता है हमारे पास जो है, जो एन नॉट ओरिजिनल था वो 2 टाइम था, आफ्टर सम टाइम फर्स्ट हाफ लाइफ वो एन जो है 1 बच गया, यानी पहले 2 था, अब हाफ लाइफ के बाद कितना 1 बच गया। ये अनडिकेड आपके पास है, एन और एन नॉट इज 1/2 आ गया, 1/2 इज इक्वल टू ई की माइनस लैम्डा। ये इसको हम जो है जब हाफ लाइफ फर्स्ट होगी इसको टी की 1/2 हम लिख सकते हैं। If we represent in this manner, we can take this taking log to both sides. So after taking log of 1 minus log of 2 is equal to ये आ जाएगा माइनस लैम्डा टी हाफ, टी यानी 1/2 उसके सबसेक्रेट में। तो अगर इसको हम वो करें, ये हमारे पास जो वैल्यू है log of 1 0 होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टी जो है हाफ लाइफ जो इज इक्वल टू log of 2 जो है ये 0.693 के बराबर होता है, लैम्डा इसका डिवाइडेड हो जाएगा, यानी log of 2 is equal to 0.693 over lambda. This is the equation basically for the half life. पहले हमने उसको डिफाइन कर लिया था, अब इसके अंदर हमने इक्वेशन भी हमने स्टडी कर ली है। देखिए दोबारा मैं आपको इसकी डेफिनेशन और इसको बता देते हैं ताकि दो चीजें आपको एक आपके जहन में एक बैठ जाए। टाइम टेकन इन विच हाफ ऑफ द न्यूक्लियस डिकेड, यानी वो टाइम जिसमें हाफ न्यूक्लियस रह जाए हाफ। हाँ, ये इसको हम पेरेंटल भी कह सकते हैं, इसको डॉटर भी कह सकते हैं। जो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है दिस इज डॉटर न्यूक्लियस, दिस इज पेरेंटल न्यूक्लियस। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट बच गई है, अब ये बच गई, यानी आधी डेवलप होगी है और आधी रिमेनिंग है। टाइम टेकन फॉर एक्टिविटी ऑफ एन आइसोटोप टू हाफ, तो ये हमने उसकी इक्वेशन जो है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर लैम्डा इक्वेशन निकाले। हाँ, अगर आपके पास टी हाफ नहीं है तो टी कैन रिप्लेस बाय टी कांस्टेंट, टी सी कह सकते हैं उसको। इसको क्या कह सकते हैं, ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास जो है एन और एन नॉट इज इक्वल टू ई माइनस लैम्डा टी सी। अभी तो जनरल इक्वेशन मैंने नहीं लिखी, अगर आप लिखना चाहें तो आप यही इक्वेशन जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एन और एन नॉट इज इक्वल टू ई की माइनस लैम्डा टी, टी के नीचे सी कांस्टेंट। ये इनको भी कांस्टेंट की वैल्यू टाइम हो सकता है, वो 0 मिनट भी हो सकता है, 2 मिनट भी, 4 भी, हाफ भी हो सकता है, यानी हाफ जिसमें एलिमेंट डिके कर दिया। मीन भी हो सकता है, उसकी मीन वैल्यू आप जो है डिफरेंट वैल्यूज की आप मीन निकालते हैं उसको। तो दिस इज बेसिकली द कांसेप्ट ऑफ द हाफ लाइफ, बट आवर टारगेट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ।
अभी इससे इनवर्स स्क्वायर लॉ कोई हमने प्रूव नहीं किया है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब जस्ट इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड द रेडिएटिविटी. यस, सपोज करें ये हमारे पास जो है एक जो है न्यूक्लियाई है जो कि रेडिएटिव न्यूक्लियाई है. ये आपके पास जो है इस रेंज में इसका स्फेरिकल, क्योंकि इसका जो वेव्स जाती हैं इसकी एक्टिविटी जो जाती है स्फेरिकल पाथ में जाती है. जहाँ इधर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाएगी, इधर भी 2 किलोमीटर, इधर भी 2, यानी 4 चक्कर आप यू कैन से एवरी साइड स्फेरिकल साइड जो है ना इट विल गो द इक्वल डिस्टेंस जो है स्फेरिकल पाथ में. इसलिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ जो डिस्टेंस छुड़वाया जाता है जहाँ पे आबादी ना हो, वो स्फेरिकल उसका जो है पैटर्न जो है उसको फॉलो किया जाता है, ताकि आबादी जो है जहाँ तक रेडिएशन का जो है वो इफेक्ट होगा उधर तक वो आबादी नहीं होनी चाहिए जहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया हुआ. ये उसके एसओपीज में शामिल है. ये देखिए हम कहता है कि हमने ये एलिमेंट रख लिया है, ये इसका डिस्टेंस r1 है, ये हमने जीटीएम ट्यूब जो है काउंटर के साथ वो की हुई है. अब ये जो इसका एरिया है जहाँ तक हम एलिमेंट के इर्द गिर्द का ले रहे हैं, दिस इज 4πr². स्फेरिकल में है 4πr² के बराबर. तो अगर मेजर्ड रेट ओवर एक्टिविटी हम लिखते हैं तो ये दिस जो मेजर्ड रेट हमारे पास एरिया ऑफ डिटेक्टर है उसका 4πr², कहीं भी आप इसको जाके मेजर कर सकते हैं. ये इसकी बेसिक इक्वेशन है जो कि आपको याद रखनी है. मेजर्ड रेट ओवर एक्टिविटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डिटेक्टर, यानी कि कितना एक मेजर कर रहा है, इसी हिसाब से फिर सारों को मल्टीप्लाई कर लेगा कि इतने एलिमेंट आ रहे हैं. तो एरिया ऑफ डिटेक्टर डिवाइड बाई 4πr². अब वो कहता है ये डिस्टेंस r1 पे हम डिटेक्टर जो है जीएम ट्यूब रखी हुई. अब इसको थोड़ा सा इनर साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं. अब ये देखें वो कहते हैं डिस्टेंस पहले r1 था जो अब r2 हो गया. दिस इज कॉमन सेंस. अगर इधर हम जीएम ट्यूब ले आते हैं तो हमारे पास एक्टिविटी उसकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. ऑफ कोर्स इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए. क्यों? उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए. ये हमें इनवर्स स्क्वायर लॉ बता रहा है. इनवर्स स्क्वायर लॉ यही कहता है कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². अब इसमें r1 हमारे पास ज्यादा है, उसकी जो है इंटेंसिटी कम होगी. अब r2 कम है तो उसकी जो है इंटेंसिटी जो है या एक्टिविटी ऑफ रेडिएशन ज्यादा फील होगी. इधर हमारा टिश्यू ज्यादा डैमेज हो गया एज कम्पेयर टू हेयर, या उससे भी दूर जाएंगे तो मजीद कम उसकी इंटेंसिटी की वजह से हमारे टिश्यू की इंजरी मजीद कम हो जाएगी. तो ये इक्वेशन अगर हम इसको हम वाइंड अप करते हैं तो एरिया ऑफ डिटेक्टर ऑफ 4πr² कंपेयर द हमारे पास रेडिएशन ऑफ द बोथ स्फीयर्स. अब वो कहता है ये हमारे पास एक I1R1 आ गई, ये I2R2 आ गई. ये तो हमें कॉमन सेंस का तो पता है I2 हमारी जो है ग्रेटर होगी क्योंकि डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, I1 कम है. लेकिन इसी इक्वेशन को वो कहता है अगर हम कहते हैं कि इसका जो है रेडिएशन ओवर 4πr², ये रेडिएशन ये किस्म होगी, कौन सी आप रेडिएशन यूज करना चाह रहे हैं, यूरेनियम है, थोरियम है, सीजियम है, अमेरिशियम है, व्हाट इज द रेडिएशन, उसी रेडिएशन डिवाइडेड बाई 4πr² किसी भी एरिया पे उसकी वैल्यू हम ले लेंगे. तो I इज इक्वल टू हमारे पास K/R. ये रेडिएशन चूंकि जब डिस्टेंस कम या ज्यादा करें सेम रही है, हमारे पास बार बार रेडिएशन को चेंज नहीं करेंगे. अब डिस्टेंस इस एक चीज को हम जो है कॉमन रख रहे हैं, बाकी चीजों को हम जो है डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं. ये रेडिएक्टिव एलिमेंट वही है. अब इसका डिस्टेंस भी 4πr² रहेगा. R1 और R2 जब चेंज होंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास ये एरिया में चेंजेस आएंगे. तो अब वो कहता है कि अगर आपके पास जो है K और 4πr1 का स्क्वायर I1 है तो I2 है K और 4πr2 का स्क्वायर. क्यों? क्योंकि R1 R2 चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से I1 I2 भी चेंजेस आ रहे हैं. तो अगर इसके हम रेशियो निकालना चाहते हैं I1 R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू I2 R2 का स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो है रेशियो आती है I1 और I2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर. यही क्वेश्चन आप ऑलरेडी जो है हीट क्लास में या लाइट क्लास में आप पढ़ चुके हैं. मैं एक सेकंड आपको दिखाऊं. ये I1 I2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर और R1 स्क्वायर. सेम ये इक्वेशन जो है आपके पास रेडिएशन के केस में भी सेम आपकी बात. तो I1 ओवर हमारे पास I2 इज R2 स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर. अब इसका मतलब जनरली अगर हम लिखते हैं तो I इज प्रोपोर्शनल टू, चूंकि I1 जो हमारा पास बन रहा है 1 ओवर R2 का स्क्वायर बन रहा है. तो ये देखें I1 और I2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर. तो अगर हम इनका रिलेशन देखना चाहें I1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर R1 का स्क्वायर, I2 इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर R2 का स्क्वायर. ये इक्वेशन बनी, जनरलाइज करेंगे तो ये बन जाएगी I इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर R स्क्वायर.
यानी जो डिस्टेंस आप चेंज करते जा रहे हैं, इस इंटेंसिटी या एक्टिविटी जो है, इसको ए भी हम लिख सकते हैं, एक्टिविटी ऑफ दैट रेडिएक्टिव एलिमेंट, उसकी एक्टिविटी जो है उसी हिसाब से जो है वो इन्वर्सली रिलेशन है वो काम होने जा रहा है। बेसिकली इसमें हमारे 2 एक्सपेरिमेंट जो है ना कवर हुए हैं। एक तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ का हमने जो है उसको हमने कंक्लूड किया है। अब आपकी असाइनमेंट क्या है आपकी असाइनमेंट ये है, आप लोग करेंगे कि ग्रेविटी और कूलम्ब लॉ जो है या उसकी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो हैं उन पे किस तरह असर डाल। तो मैं एक आज जो है असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, तो यू हैव टू डू दैट असाइनमेंट। ये बेटा देखें, इन्हीं चीज़ों पे हमने रिजल्ट बनाने हैं। अगर आप असाइनमेंट जमा नहीं कराएंगे, आप कहेंगे ज़बरदस्ती ऐसे नंबर लग जाने हैं, तो टीचर को अलार्म नहीं आना आपने कुछ अगर किया है कि नहीं किया। अब पॉलिसी बनती है कि आप MCQs दें या ओपन बुक दें या आके खुद परफॉर्म करें, वो हम पॉलिसी के साथ हैं, बिकॉज वी आर द बेसिकली इदारे के हम जो है उसके जो है वर्कर्स हैं। एज पर इंस्ट्रक्शन वी विल डू, क्योंकि HEC इंस्ट्रक्शन देती है यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन देती है हमें। हम यूनिवर्सिटी के जो है जिस तरह भी फॉलोअर्स हैं, जिस तरह कहेगी हम वैसे ही। हमें ओपन बुक कहेंगे तो हम ओपन बुक दे देंगे, उसमें साफ जरे वो फिर अनसीन क्वेश्चन होंगे ओपन बुक में ना। अगर वो कहेंगे MCQs दें तो MCQs दे देंगे। अगर वो कहें को परफॉर्म करवाएं लैब में आके, क्योंकि बच्चों की जिंदगियां अगर वो कहते हैं खतरे में नहीं डालनी, तो मे भी वो फिर जो है ना हमें वो इस चीज़ में रेस्ट्रिक्ट कर लें कि आप बच्चों को अलाउ ना करें। तो कोई भी वो SOPs बना के तो जो भी जो है इंस्ट्रक्शन देंगे वी हैव टू डू दैट वन। लेकिन अगर ये बात इस जजमेंट पे आ गई कि ऑनलाइन पे ही इनको जो है वो जो है इनके टेस्ट ले जाएं, तो अल्टीमेटली उसमें असाइनमेंट्स भी आपकी जो है उसमें चेक होंगी। तो अब गोया मैं एक और असाइनमेंट आज अपलोड कर लूँगा, कल का दिन है, आप असाइनमेंट उसको करें। नेक्स्ट वीक तक आपको असाइनमेंट आ जानी चाहिए। असाइनमेंट यही होगी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ हाउ एप्लीकेबल फॉर द न्यूटन ग्रेविटी। जी मैं बेटा ये अपलोड भी कर दूंगा कि इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है कैसे एप्लीकेबल है न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ के ऊपर, एंड जो है कूलम्ब लॉ जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है 2 चार्जेस के दरमियान पाई जाती है। इसमें हमने 2 स्टडी की है। एक हमने लाइट का लॉ देखा है कि लाइट के जो करीब आते जाते थे उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, दूर जाते जाते थे उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही थी। यही हाल जो है हमने रेडिएक्टिव एलिमेंट का देखा है। जो हम करीब आए हैं तो टिश्यू डैमेज होना, हमारे पास एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा खतरा बढ़ा। यही चीज जो है डोज जब देखते हैं यही जब मैं आज कर रहा था कि मरीज को डोज दी जाती है, इसी चीज को मद्देनजर रखा जाता है कि जो मरीजों को डोज दे रहे हैं कितना है, यानी कि उसको फासले पे रखना है। अगर एक्सपोज करना चाह रहे हैं रेडियोथेरेपी से, कितना है उसको करीब, यानी कि उसके जो है जो भी आपका रेडिएक्टिव जो सोर्स होगा उसको कितना करीब लाना है। अगर केमिकल के फॉर्म में देनी है तो उसमें फिर आपको उस डोजेज में फिर उसकी कंसंट्रेशन देखी जाती है कि उसको डाइल्यूट कितना करना है उसको। उस टेक्नीशियम जो आयोडीन जो डोज की फॉर्म में दी जा रही है, हाउ मच उसको हमने डाइल्यूट करना है ताकि उस डाइल्यूशन के बाद जो है मरीज को फायदा तो हो लेकिन नुकसान ना हो। दिस इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर। तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज काइंडली यू कैन आस्क द क्वेश्चन, एंड आल्सो बी श्योर दैट के यू हैव टू रेगुलरली जो है असाइनमेंट आपने जमा करानी है। होपफुली इन द नाइट जो है आई विल अपलोड वन असाइनमेंट कि आपकी ये इन 2 लॉ से, इसमें 2 चीजें हमने स्टडी की हैं। एक हाफ लाइफ हमने स्टडी की है, जो हर एलिमेंट होगा उसकी हाफ लाइफ किस तरह फाइंड करेंगे उसको मैंने आपको फार्मूले से भी नोट करके बताया है, और साथ ही मैंने आपको उसका जो डिस्क्रिप्शन भी दिखाई है और डेफिनेशन भी बताई है, और उसका बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में भी हमने देखा है। कोई अगर क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ में भी इसमें हमने देख लिया कि रेडिएशन और लाइट के लिए जिस तरह एप्लीकेबल है, इस तरह ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक और रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स के लिए भी हमारा जो है दिस लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल। तो आपने इसके बारे में जो भी आपके इनके लिटरेचर आपको सर्च करके मिले तो अल्टीमेटली इसको सीरियसली आपने करना है। तो आई विल चेक इट एंड आल्सो उसी बेस पे इंशाल्लाह आपका रिजल्ट तैयार होंगे। अच्छा कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है? सर जी अटेंडेंस का आप पहले क्या बता रहे थे, क्या वो भी इफेक्ट करेगी मार्क्स बेस पे? नहीं बेटा, अभी उन्होंने हमसे पूछा था कि ऑनलाइन बच्चे जो आते हैं आपके पास टोटल क्लास में से, जिस तरह लेट्स सपोज वी आर कंबाइनिंग 2 क्लासेस,
तो मेरे पास अगर तादाद यानी कि अगर 85 या 90 बन रही है तो कितने % बच्चे जो है आपकी जो है मीटिंग जब आप कॉल करते हैं उसमें बैठे होते हैं, या जिन लोगों ने यूट्यूब पे चैनल बनाए हुए हैं वो उस पर अपलोड करते हैं, तो कितने व्यूअर हैं उनके, कितने लोग क्लास में से व्यू करते हैं। ये हमसे लमसम पूछा गया था। ये बेसिकली डायरेक्शन हमें कहाँ से आती है, जो एकेडमिक जो के डायरेक्टर हैं वो जो है आगे फ्लोट करते हैं डीन और चेयरमैन को, फिर चेयरमैन फैकल्टी को, ताकि बच्चों का रिस्पांस देखना चाह रहे होते हैं कि बच्चे कितने % जो है इसके अंदर जो है वो यानी कि उसको सीरियसली ले लें क्लासेस को, और कितने % नहीं आ रहे। तो क्योंकि होपफुली इस वीक जो मीटिंग होनी है वो आपके एग्ज़ाम के बारे में मीटिंग होनी है। सॉरी ये कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है, मैं रिपीट कर देता हूँ अगर कनेक्शन ठीक हो। तो वो ये देख रहे हैं कि ऑप्शन जो है 2-3 ऑप्शन उनके पास हैं कि इन बच्चों को ओपन बुक जो है एग्ज़ाम लिया जाए। ओपन बुक का मतलब ये होगा अनसीन क्वेश्चन आएंगे, यू हैव टू डू, लिमिटेड टाइम होगा 3-4 घंटे में, या आप एक दिन है उसमें करके आप जो है जमा करा दें। दूसरा ये एमसीक्यूज जो है उसमें इंटरनेट जो है समटाइम पुअर कनेक्शन आ रहे होते हैं, तो उसमें कुछ बच्चों का नुकसान हो सकता है, ये चीज़ भी सोची जा रही है। तीसरी बात यह है कि कुछ अरसे के लिए यूनिवर्सिटी को ओपन करके अगर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब अगर अलाउ करता है बच्चों को बुला के उनसे परफॉर्मेंस भी ले ली जाए, उनसे एक एक क्लास को करके एग्ज़ाम भी ले लिया जाए। ये तीनों चीज़ों चारों पे गौर हो रहा है। तो वट एवर द इंशाल्लाह डिसीजन विल बी फ्लोट, आई विल फॉरवर्ड इट टू यू, जो भी उनकी मीटिंग का डिसीजन होगा, क्योंकि वीसी साहब ने कमेटी बना ली है, वो कमेटी इन सारी तो शुरू में ये भी था जी बेटा। सर, शुरू में ये भी था कि मे भी आपकी असाइनमेंट्स के हिसाब से ही कुछ कर हाँ दिया जाए, तो बेटा, उस पर भी गौर हो सकता है। शुरू में जो है असाइनमेंट का ऐसा था कि एचईसी ने कहा था कि क्योंकि बाहर के मुल्कों में वो लोग देख रहे थे, वो असाइनमेंट दे देते, 2 असाइनमेंट पे वो कह रहे थे कि उस पर उनका रिजल्ट बना लें। अब वो कह रहे हैं अगर 2 असाइनमेंट हम लेते हैं, कुछ बच्चे जो है जिस तरह कुछ गाँव के वो अपलोड नहीं कर पाए, वो फिर हम व्हाट्सएप पे किस तरह उसको जो है असेस करेंगे। एचईसी ने कहा है, फिर लोगों ने क्वेश्चन उठाए हैं, राइज किए हैं, उन्होंने कहा फिर ऐसा करें, आप बच्चों को लिटरेचर जिनको नहीं पहुंच पाया है उनको आप जो है टीसीएस या किसी उसके थ्रू सीआर क्लास, जीआर की क्लास जो होती है उसके थ्रू आप नोट्स आप प्रोवाइड करवाएं, और साथ ऑन क्लासेस लें ऑनलाइन, जो बच्चे इंटरनेट जिनके पास अवेलेबल है उसमें से मोस्टली % अगर अवेलेबल हो सकती है तो उनको तो आप देना, तो ताकि उनको कुछ नॉलेज तो जाए ना। ये तो नहीं है बगैर पढ़े बच्चे जो है ना सीजीपीए लेके आगे चले जाएं, तो ये किसी कानून में भी नहीं है। बच्चे कह रहे हैं अलाउ कर दें। इसमें फिर आप लोगों की जो है कमेंट्स आपके भी होते हैं, फैकल्टी के भी होते हैं, लेकिन साहब जो पॉलिसी मेकर होते हैं पॉलिसी तो उन्होंने बनानी होती है। ये सारी चीज़ें काउंट ज़रूर होंगी, लेकिन जो पॉलिसी बनाएंगे फिर उस पर हमें चलना पड़ेगा, वो क्या पॉलिसी बनाते हैं। ये सारी चीज़ें अभी अंडर गौर हैं, जो भी डिसीजन आएगा इंशाल्लाह। तो बाकी एक बच्ची ने मुझे नोट्सों के लिए कहा था, मैंने कुछ प्रिंट लेके रखा, लेकिन वो एक बंदे ने एक दिन जो है ऑफ टाइम में मेरे से यानी कि कांटेक्ट किया, आई वाज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम यूनिवर्सिटी, नाउ आई मूव टुवर्ड्स द इस्लामाबाद। बच्चे कह रहे हैं कि अलाउ करते हैं सर वेटिंग में। जी मेरा बेटा, अलाउ करते हैं सर बच्चों को वेटिंग में। अच्छा कभी वेट कर रहे हैं अभी? असल में ना सम टाइम ये हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना 3-4 चीज़ें, हम डिजिटल पाकिस्तान तो बना रहे हैं, लेकिन अभी हमारे काम जो है, अभी सबसे पहले एक वाईफाई का जो मेन जो है बंदे की देहातों शहरों हर जगह अच्छा स्ट्रांग वाईफाई, चलो 4G नहीं आता, 3G 2G ही आ जाए, तो ये अक्सर कनेक्शन, हालांकि 2-3 कनेक्शन घर पे लगवाए हुए हैं, पीटीसीएल भी लगवाया हुआ है, वाईफाई एक और भी है। सुबह मैं मोबाइल से कनेक्ट करके भी बैठा था और वही कनेक्शन का पुअर सम टाइम आ जाता है, सम टाइम ओके हो जाता है। अब दिस इज ऑल अबाउट द ये जो है अब टेलीकॉम वालों का ये है कि अब इन्होंने जो वो किया है, बाहर के मुल्कों में जो प्रैक्टिस हो रही है उनके पास ज़बरदस्त इंटरनेट अवेलेबल होते हैं, और वो जो जितनी MB की फाइल्स फ़ौरन जो है उनको सेंड हो जाती है। इधर तो हम जी 24 MB की फाइल लेके बैठा रहा नहीं जा रही। अब यही वो बच्चे ने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स जो है ना CR में भेजी हैं, मैं उस तरह की जो है उसको फॉलो करके इंशाल्लाह उस पर जो है ना 1-2 दिनों में कोशिश करूँगा कि वो उसमें आप जो है ना चीज़ें आपके लिए, कोशिश हमारी यही है कि आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट चीज़ें बैठ जाएं, ताकि आपको फिर बाद में जो है
एग्ज़ाम में या किसी चीज़ में परेशानी ना हो। ये नहीं है कि आपको बगैर पढ़ाए हम आपसे एग्ज़ाम लें और आपको जो है ग्रेड में मार दे दें। तो वी आर नॉट जो है थिंकिंग अबाउट दिस नेगेटिव जो है थिंकिंग। तो वी वांट दैट यू बिकम समथिंग, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि बगैर पढ़े वाला भी जो है बराबर मार्क्स ले जाए और पढ़ा लिखा जो बेचारा मेहनती बच्चा है उसका भी बराबर जो है ना उसके अंदर। हाँ क्वेश्चन बेटा जी। सर आप तो ग्रेड देंगे, आपसे तो उम्मीद है हमें। गलत उम्मीद ना जमाए, जिस तरह वो हमें डायरेक्शन देंगे, अब सबका मैं ये नहीं दे सकता ना। उसमें ये है कि आप लोगों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि हाउ मच यू आर टेकिंग सीरियसली दैट असाइनमेंट्स। अच्छे ग्रेड जो बच्चे जो है ना इधर उसमें ऊपर दिल बनाते रहते हैं, अब उसको भी हम जो है A1 ग्रेड देते हैं भाई, वो कितना सीरियस है पढ़ने में। एनीवे मैं ये तो चले मैं जो कर रहा हूँ, लेकिन आपकी सावधानी कुछ ना कुछ जो आपके म्यार हैं देखे जाएंगे उसमें। अगर जो भी यानी एग्जाम का तरीका कार है जी बेटा सर अभी हमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो बेटा मीटिंग सर मैं ये बेटा मैं पूछ रही हूँ, अभी मोड ऑफ एग्जामिनेशन की क्लैरिटी नहीं है, हमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि किस तरह एग्जामिनेशन कंडक्ट होने हैं, तो हम लोग प्रेपरेशन किस अब मैं आपको बताता हूँ। अब बेटा जीएम काउंटर का जो प्रिंसिपल है, जो भी आपने देखें MCQs आते हैं या आपका जो है एग्जाम जो है कोई ओपन बुक होता है, तो अगर प्रिंसिपल आप जीएम काउंटर आ जाता है तो वही रहना है ना। अब ये तो नहीं उसका प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा या उसकी वर्किंग चेंज हो जाएगी। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी गुड एंड फॉर एनी वर्स। तो आप अपने आप को, मैंने आपको देखें वो शुरू में न्यूक्लियर रिपोर्ट्स वाली भी मैंने आपको शेयर की थी, उसमें वाइवा भी था, चीजें इन्हीं में से ही आनी है। अब हम ये जरूर पूछ सकते हैं कि भाई लिक्विड फॉर्म में अमेर्सियम है या सीजियम है, थोड़ा सा टेक्निकल यानी कि ना, ये आपको पता होना चाहिए कि इनकी हाफ लाइफ क्या है। तो वो जो नोट्स हैं उन्हीं के अंदर से पढ़ लें, मैं तो अक्सर देता ही उन्हीं से हूँ। लोग बड़े मुश्किल मैं अब नाम चीजों का नहीं लेता, आई डोंट वांट टू जो है डिक्लेयर दैट पीपल, वो तो बच्चों की आजमाते हैं कि इनका नॉलेज कितना है। हमें तो ये है कि बच्चों को कुछ हासिल कर लिया इन्होंने, उन्हीं में से जो है ना हम पूछ लेते हैं। तो बाकी हमारा ये नहीं होता कि आपकी ग्रेडिंग खराब करें, कहीं आप अप्लाई ना कर सकें, क्योंकि आजकल जो आने वाला दौर है उसमें फर्स्ट डिवीजन या अच्छी ग्रेडिंग वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, जिस तरह मेरिट इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए आप सीखें भी सही, आपकी ग्रेडिंग भी अच्छी हो, हम दोनों चीजें हम चाहते हैं। हाँ, बगैर सीख के आपकी ग्रेडिंग अच्छी हो वो फिर हमारी जो है इंसल्ट होगी। कहीं इंटरव्यू में आप जाएंगे, आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे अपने आप को, तो वो फिर फौरन यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम होता है। ठीक है बेटा, आप 1 मिनट